Hello students, today we are going to discuss about disadvantages of debentures. Last video we have discussed about advantages of debentures. Now let us see disadvantages of debentures from the viewpoint of the company. First one is permanent burden of interest. Interest on debenture has to be paid every year irrespective of profits. During period of depression, it becomes a heavy burden on the company's earning. It means whether a company earns a profit or not, but there will be a permanent burden on the company to pay the interest to the debenture holders. Because whether company earns a profit or not, that doesn't matter to them. They will be getting their regular return, if you remember. So therefore, this will be the permanent burden to the company for the payment of the interest to the debenture holders. Then second is reduction in credit standing. The credit worthiness of a company which has issued a large amount of debenture is low. Borrowing from banks and financial institution becomes difficult. Credit worthiness of a company means suppose if we are issuing more debentures. In that case, the credit worthiness of the company will decrease too much. Why? Because if any kind of a bank or financial institution want to give any loan to the company, then first it will see the credit worthiness of the company. इट मीन्स अगर कोई भी कंपनी लोन लेती है किसी भी बैंक से या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो पहले जो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है वो कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस देखता है. वो देखता है कि कंपनी पे कर भी सकती है या नहीं पे कर सकती है लोन अमाउंट बाद में. तो जब वो देखेगा कि ऑलरेडी कंपनी ने डिबेंचर्स इशू कर रखे हैं और डिबेंचर्स का जो फ़ंड होता है वो भी रिटर्न करना होता है, इंटरेस्ट भी पे करना होता है, तो ऑलरेडी एक तरीके से ऑलरेडी एक क्रेडिट बोरोड फंड ऑलरेडी कंपनी जब ले लेती है तो उसकी जो क्रेडिट वर्दीनेस होती है, अब वो कहीं और से भी बोरो करना चाहता है तो उसकी वो क्रेडिट वर्दीनेस थोड़ी कम हो जाती है. ओके, थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है. देन थर्ड इज चार्ज ऑन एसेट. डिबेंचर्स यूजुअली इन्वॉल्व mortgages of fixed asset. Company cannot raise funds easily through debentures unless it has enough fixed asset. There will be a charge on asset. कंपनी को कुछ ना कुछ सिक्योरिटी पे रखना पड़ता है. सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द डिसएडवांटेज फॉर द कंपनी कि कंपनी आगे कहीं और से कुछ फंड बोरो करना चाहती है तो वो नहीं कर पाएगी बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ एसेट, क्योंकि एसेट उसके पास कम होंगे. यस, क्योंकि कुछ एसेट वो डिबेंचर्स जितने वो इशू पे भी अपनी सिक्योरिटी के लिए एसेट्स को मॉर्टगेज रख देगी. तो इसलिए दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ द कंपनी. Then fourth is reduction in dividend. During times of low earning, very little profit might be left after payment of interest on debentures. The company may not be able to pay enough dividend and the market value of its shares may go down. Reduction in dividend means during times of low earnings very little profit might be left. जब जो प्रॉफिट होता है अगर वो कम अर्न हुआ है तो काफ़ी कम प्रॉफिट बचेगा जब हम इंटरेस्ट पे कर देंगे. और कम प्रॉफिट का मतलब है शेयर होल्डर्स को कम डिविडेंड मिलना. जब शेयर होल्डर्स को कम डिविडेंड मिलेगा तो ऑब्वियसली देयर विल बी, जब कम प्रॉफिट होगा तो शेयर होल्डर्स को कम डिविडेंड मिलेगा. जब शेयर होल्डर्स को कम डिविडेंड मिलेगा तो जो मार्केट वैल्यू होती है शेयर्स की वो ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी. ओके, सो दिस विल बी ऑल्सो द डिसएडवांटेज ऑफ द company from the view this disadvantage of debentures from the viewpoint of the company. So these are the four disadvantages related to the company. फर्स्ट इज़ परमानेंट बर्डन ऑफ इंटरेस्ट, कि इंटरेस्ट आपको पे करना ही करना है कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो. सेकेंडली क्रेडिट स्टैंडिंग, जो क्रेडिट वर्दीनेस होती है वो कंपनी की कम हो जाती है क्योंकि ऑलरेडी उसके पास बोरोड फंड बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. थर्ड, चार्ज ऑन एसेट होता है क्योंकि उसे मॉर्टगेज रखना पड़ता है कुछ ना कुछ, तो जो उसके एसेट्स होते हैं वो उसको मॉर्टगेज रखने पड़ते हैं. तो उसके पास बाद में जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, फिक्स्ड एसेट लाइक लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये सारे थोड़े कम हो जाते हैं जिससे वो फिर आगे और कोई भी लोन नहीं ले पाता. देन रिडक्शन इन डिविडेंड मीन्स कि अगर कंपनी की जो प्रॉफिट अर्निंग है वो कम है
और फिर उसमें से भी उसने इंटरेस्ट पे कर दिया विच ही हैज़ टू पे रेगुलरली, तो उसके बाद जो शेयर डिविडेंड बचता है शेयर होल्डर्स के लिए वो बहुत कम बचता है। और अगर डिविडेंड कम होता है तो ऑटोमेटिकली जो शेयर प्राइजेस होते हैं वो डाउन हो जाते हैं। सो दैट विल ऑल्सो लीड टू द डिसएडवांटेज। नाउ लेट अस सी द फ्रॉम द डिसएडवांटेजेस फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। डिबेंचर होल्डर्स को क्या लॉस होता है? फर्स्ट इज दे डोंट हैव एनी वोटिंग राइट्स। डिबेंचर होल्डर्स को कोई वोटिंग राइट्स नहीं होता, इसलिए जो भी शेयर होल्डर्स सब मिलके डिसीजन लेते हैं उनको उसी के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है। तो इसलिए दिस वी कैन से इट इज़ अ डिसएडवांटेज फॉर द डिबेंचर होल्डर्स that they don't have any interference in the management of the company. They cannot take any decisions regarding to the company. So therefore this can be one disadvantage for the debenture holders. Then next one is high unit price. हाई यूनिट प्राइस मीन्स जो डिबेंचर्स इशू होते हैं तो जो उनकी पर शेयर जो वैल्यू होती है, पर डिबेंचर्स जो वैल्यू होती है, यूनिट प्राइस होती है, दैट इज़ रिलेटिवली हायर। तो जो हर इन्वेस्टर होता है वो इतना कैपेबल नहीं होता कि वो उस प्राइस से डिबेंचर्स को परचेज कर सके। सी वॉट इट इज़ रिटन हियर, द यूनिट प्राइस ऑफ डिबेंचर इज़ जनरली हायर दैन दैट ऑफ शेयर्स, therefore small investors may not be able to purchase debentures. It is not possible for all the investors, especially for the small investors, to purchase the debentures because their relatively unit price is high as compared to the shares. Then next is unattractive. Enterprising investors who want high return and appreciation of capital find debentures unattractive. कुछ investors हैं जिनको हाई डिविडेंड चाहिए, या जिनको ये है कि अगर कंपनी ग्रोथ करे तो उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है या उनका जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो भी इंक्रीज़ हो। तो अगर जिन इन्वेस्टर्स को हाई रिटर्न चाहिए होता है या किसी भी कुछ पार्ट चाहिए होता है तो वो उन लोगों के लिए डिबेंचर्स राइट ऑप्शन नहीं है। दे फाइंड attractive. So this can also be the disadvantages for some of the cautious investors. Cautious investors means कि कुछ investors होता है जो high risk appealing investors होते हैं, जिनको high dividend भी चाहिए होता है, high risk, they are able to take high risk. Okay, so they will find this kind of debentures unattractive. So उन debentures holders के लिए ये एक डिसएडवांटेज है क्योंकि उनको इसमें हाई रेट ऑफ डिविडेंड नहीं मिलता है। सेकेंडली यूनिट प्राइस हाई होता है तो जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं उनको प्रॉपरली दे कैन नॉट परचेज दिस डिबेंचर्स। थर्ड है नो वोटिंग राइट्स। नो वोटिंग राइट मीन्स दे कैन नॉट इंटरफेयर इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। सो दीज आर सम ऑफ द डिसएडवांटेजेस फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कंपनी एज वेल एज फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स. Hope you all understood. Here we finish our debenture part. Tomorrow we'll start with the new topic. Hope you all understood. Thank you.